I'm perfectly all right. Going well. The day was also awesome. You tell. Very nice if you did. That's all what we can expect. No problem. I know that it was difficult, but when we start reading them, obviously it will be our cup. You can say it will be what something that we will be able to memorize it, or somewhere it is there in the passage or anywhere we are able to recognize the meaning of that. So that's why it was being taught to you. Obviously, that will be difficult. That can't be easy. Any new thing which will be introduced will always be difficult. On the first day, never ever anything seems to be easy. Don't you think? But it's our duty, moral duty, that to learn everything, something new every day. Because we know that learning is a lifelong process that starts from the cradle and ends till death. इसका क्या मतलब है? Learning is a lifelong process. It starts from cradle and ends till death. Why, Divya, you are attending class after so many days? Don't know the meaning of this. Why? Okay, let others try. Okay. I am fine, Ritika. I am asking you one question, that what is the meaning of the word learning is a continuous process. It starts from cradle and ends till death. Yes, very intelligent student of my class, Shivam, said the right answer. Sumanpreet has also said the right. I do understand it's difficult to manage. हम ये कहते हैं लर्निंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, मतलब लर्निंग ऐसी है जो कॉन्टिन्यूस चलती रहती है. कॉन्टिन्यूस मीन्स समथिंग जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक चलती रहती है ना. मतलब कॉन्टिन्यूस, यू अंडरस्टैंड, जो चल रहा है. हम कहते हैं क्रेडल. क्रेडल का मतलब होता है मदर्स वॉर्म. जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब से वो लर्न करना सीखता है, और जब तक उसकी मौत नहीं होती है वो तब तक इंसान लर्न करता रहता है. So that is why it is said that learning is a continuous process. It starts from cradle and ends till death. Is it understood now? Yes, lifelong सीखते रहते हैं हम.
Okay, so we have learned some of the words also tomorrow yesterday, and that was the new words. No, ma'am has not gone anywhere. Just wait for a while. I'm just finding out the PPT. That's all. Ma'am has came. Chalo. We are having a new topic in your, you can say, syllabus, and the topic is sequence of a sentence and a paragraph. You need to understand this very well. So, what is it exactly? One of the questions set in the objective test in English relates to the sequence of the sentences. A student is required to rearrange the parts of a sentences into the meaningful paragraph. मतलब क्या होता है कि आपके पास एक जैसे जम्बल्ड वर्ड्स होते हैं, ऐसे जम्बल्ड आ जाता है, एंड यू नीड टू गिव देम अ सीक्वेंस. ऑर्डर देना इज द सीक्वेंस ऑफ द पैराग्राफ. In fact, there are no hard and fast rules for this kind of a test. इसमें कोई hard and fast rules नहीं है. बस हमें पता है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है. कौन से सर ने टेस्ट लिया था? रवि सर ने इंग्लिश का टेस्ट लिया था. वेरी नाइस. ओके, सो इसमें क्या है? Only sound knowledge of the English language and constant practice may enable a student. Let us learn it. What is jumbled sentences now, please? उसमें क्या है, कहते हैं कि इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. जैसे हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखा है, मैंने क्लास में सिखाया है. लेट मी नो व्हाट इज सेंटेंस स्ट्रक्चर. बताओ सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है.
यस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमने वही चीज दिमाग में रखनी है जब हमने इस जम्बल्ड वर्ड को सीक्वेंस देना है। ठीक है, ओनली साउंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस में इनेबल अ स्टूडेंट टू ग्रास्प द मीनिंग ऑफ अ रीअरेंज सेंटेंसेस or reconstructed paragraphs. This section of the book in your hand equips the students with the essential of these kinds. So आपको sequence of sentence सीखना है कैसे है. In this type of rearranged of the sentences, 6 parts of the sentence are given. The position of the sentence 1 and 6 are fixed. The rest of the 4 parts are numbered as P, Q, R, S, which are jumbled. A sub student is expected to arrange these 4 parts in a meaningful sentence and mark the correct order from the above alternatives provided. जैसे हमने क्या कहा, इसमें उसने क्या बोला, इट इज वेल नोन दैट, फर्स्ट और सिक्स सेंटेंस को उसने क्या करा, अरेंज कर दिया. इट्स अ वेल नोन फैक्ट दैट डैश इज वेरी हार्ड. It is well known fact that youngsters in the city and the villages, the effect of the cinema on the school and the college. इसको हमने क्या करना है, अब अरेंज करना है. नो डाउट हमने आंसर नीचे मैंने मेंशन कर दिया है बिकॉज इट इज आवर वर्क. सो आज तो हम सीख ही रहे थे. इट इज अ वेल नोन फैक्ट दैट द इफेक्ट ऑफ द सिनेमा, ये तो सीधा ही आता है ना वर्ड. कॉलोकेशन, द इफेक्ट, किसका इफेक्ट, ऑफ द सिनेमा. ठीक है, उसके बाद द इफेक्ट ऑफ द सिनेमा on the school and the college going youngsters in the city and villages is very bad. अब सेंटेंस समझ आया आपको फर्स्ट वाला? Is it clear with the first one? How you have to arrange it? Yes, please. There are 55 students in the group. Just tell me, are you able to arrange it? Are you able to get it? How you have to do it? अब आए और फर्स्ट और सिक्स जो था वो क्या था, उसको हमने फिक्स कर दिया था. मतलब जब आपको टास्क दिया था तभी फिक्स किया हुआ था. एंड रेस्ट पी क्यू आर एस को आपको अरेंज करना था, जिसमें कि आपका सीक्वेंस बना क्यू आर एस पी. अगर वो क्यू आर एस पी बना तो ऑब्वियसली जो बी वाला ऑप्शन था दैट वुड बी द करेक्ट आंसर. अरेंज करना था. आई लेट यू नो हाउ टू अरेंज इट एंड आई डिड इट फॉर यू because today we are just under the practice, we are just solving it for the first time, so that is why everything is mentioned. But from the next time it's got not, it just will be a sort of a, you can say, problem for you to solve it. हाँ जी, फर्स्ट को देख के ही करना है. इट इज वेल नोन दैट, क्या वेल नोन है, इफेक्ट ऑफ द सिनेमा, सिनेमा का असर स्कूल और कॉलेज जाते बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा है, चाहे वो शहर हो चाहे वो विलेज हो. क्लियर हुआ? If it is clear, say yes. If it is not clear, say repeat. Okay. Now we are having the next query with us. Please see to it. S1 and S6 are
हाँ जी, जो आपका फर्स्ट एग्जाम है दैट विल बी ऑफ 100 मार्क्स एंड यू विल बी हैविंग 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड इन दोस टाइप ऑफ क्वेश्चन देयर विल बी वन टाइप ऑफ अ question like this also, that is rearranging of the sentences. Okay, but how does a new word get into the dictionary? He sorts them according to their grammatical functions and carefully writes a definition. क्या है? But how does a new words get into the dictionary? कैसे नया वर्ड डिक्शनरी में आता है? कैसे आता है? The moment a new word is coined, it usually enters the spoken language. ठीक है, उसके बाद S वाला, the word then passes from the realm of hearing to the realm of writing. पहले आप जब आपको नया वर्ड सुनता है तो आप उसको क्या करते हो, सुनते हो, फिर उसके बाद वो हेयरिंग से राइटिंग की तरफ आता है. देन फिर बताइए, द डिक्शनरी मेक अ नोट ऑफ इट ऑन अ सिटेशन स्लिप. डिक्शनरी मतलब जो भी मतलब बना रहा है डिक्शनरी, वो उसको क्या करता है, उसकी एक स्लिप बना के रख लेता है. देन आफ्टर दैट व्हेन अ न्यू थिंग इज बीइंग एडिटेड, a lexicographer collects all the alphabetically arranged citation slips for a particular word. ठीक है, मतलब क्या होता है कि डिक्शनरी में क्या होता है, एक सीक्वेंस में दिए होते ना अल्फाबेटिकली ऑर्डर. आप पहले फर्स्ट सेकंड वर्ड पहले टैली करते हो, फिर थर्ड वर्ड साथ में टैली कर लेते हो इन दिस वे. इज इट क्लियर? मेरी आवाज क्यों कट हो रही है बच्चे? आई एम जस्ट स्पीकिंग एवरीथिंग इन अ करेक्ट वे. समवेयर जब नेटवर्क इशू आपकी तरफ आता है, यू स्टार्ट पीपल सेइंग दिस थिंग. Lexicographer is those who write the dictionary. They are lexicographer. कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट राइट नाउ वी आर नॉट फेसिंग एनी नेट इश्यूज. आर वी फेसिंग? So why we will cancel the class? No. Let's go to the next one. Sometimes the jumbled up sentences are given with the Roman numbers. For example, like this. And you need to give it a correct sequence. Now please see, he tried the door. The room was neat and clean. Then he stepped into the room. He waited for the room or two.
It opened easily and he peeked in. He tried the door. It opened easily and he peeked in. Fine. The room was neat and clean. Then he stepped into the room. He एक वर्ड मैंने छोड़ दिया. The room was neat and clean. He waited for a minute or a two. Then he stepped into the room. क्या कहते हैं? He tried the door. उसने tried मतलब डोर को खोलने की कोशिश की. बड़े आराम से वो खुल गया. उसने अंदर देखा. उसके बाद क्या लगा उसको लगा कि रूम जो है वो नीट एंड क्लीन है. उसने 1-2 मिनट वेट की. बाद में क्या करा? स्टेप्ड इनटू द रूम और वो रूम के अंदर चला गया. नॉर्मली भी तो ऐसा ही होता है ना. इट इज नॉट पीक मतलब झांकना अंदर, है ना. जैसे हम खोलते हैं डोर तो उसने अंदर ऐसे झांका तो रूम बिल्कुल साफ था. उसने 1-2 मिनट के लिए वेट किया. उसके बाद वो रूम में अंदर एंटर कर गया. सो व्हाट वी आर बेसिकली गेटिंग फ्रॉम दिस दैट वी कैन अरेंज द सेंटेंसेस. द ओनली थिंग इज रिक्वायर्ड इज दैट वी शुड नो द ट्रांसलेशन ऑफ दैट. हमें सेंटेंस समझ आ जाए तो हम उसको प्रॉपरली अरेंज कर सकते हैं. डू यू थिंक सो? ये इजी है और स्कोरिंग भी है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसे करें. ज्योतिका उसमें ऐसे था. उसने बोला कि उसने क्या करा? ही ट्राइड द डोर. मतलब उसने डोर को ट्राई करा. डोर खुल गया बड़े आराम से. उसने झांका अंदर. रूम बहुत नीट एंड क्लीन था. उसने 1-2 मिनट के लिए वेट किया और उसके बाद क्या था? वो अंदर चला गया रूम में. इज इट क्लियर ज्योतिका राइट नाउ? बिल्कुल अरविंद. यस दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. एक तो क्या बोला था उन्होंने कि आपको क्या हुआ है, फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस जो है, फर्स्ट और लास्ट फ्रेज जो है उसको फिक्स कर देंगे और अंदर वाले वर्ड्स को मतलब अंदर वाले जो है ऑप्शंस उनको अरेंज करने के लिए मिलेगा. फिर उसने बताया सेकंड टाइप आपको ऐसे भी आ सकती है दैट वो न्यूमेरिक ऑर्डर में दिया है एंड यू नीड टू अरेंज इट. Now we are going to the third type. Let's understand what it is. In this type of reconstruction of a paragraph comprising 5 or 6 sentences in a jumbled order is given to the candidate so as to arrange the given form. यहाँ पे कुछ मिस हुआ है. जैसे आपको क्या है, एक पैराग्राफ दे दिया, ठीक है, और आपको मतलब उस जैसे आपको क्या है 5 to 6 लाइंस दे दी और आपको क्या बोला ये ABCDE है. ध्यान से सुन लो बिकॉज आई एम नॉट हैविंग द स्लाइड ऑफ दिस राइट नाउ. सो प्लीज अंडरस्टैंड द थर्ड टाइप. उसमें क्या होगा, आपको एक सेंटेंस है उसको मतलब यू कैन से कट करके उसको ABCDE ऑप्शंस दे दिए और उसने बोला विच सेंटेंस शुड कम थर्ड इन द पैराग्राफ. तो आपको वहां पे बताना है कि थर्ड कौन आएगा, कौन सा आएगा. आपने मतलब जो फर्स्ट आएगा उसके आगे 1 लिख देना है, जो सेकंड नंबर पे आएगा उसके आगे 2, 3, 4, 5, 6 नंबरिंग कर देनी है. तो फिर आपको बड़े आराम से पता चल जाएगा कि रादर बी वाला थर्ड पे आना है या नहीं आना है. ठीक है. फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि वो सेकंड किस पे आएगा, सेकंड वाला कौन सा सेंटेंस है और फोर्थ पे कौन सा आएगा. दिस in this way also the sequence of sentence can be asked by you in the exam. Is it clear?
Okay, I'm telling you again. What is give? What is there? A one sentence is such that it is cut it into phrases. ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨੂੰ ਸ਼ਫਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ A B C D E देता। इन्ना समझ आ गया? क्वेश्चन कितना आना? Are you getting? You will get a sentence. एक जो you will get, you means a sentence is cut it into pieces and after that is numbered as A B C D and E जंबल करके। आपने देखना है कौन सा फर्स्ट पे आएगा, ठीक है, आपने उसके आगे 1 लगा दो। जो सेकंड पे आएगा, जैसे बी वाला सेकंड पे आना है तो आपने 2 लगा दिया, सी वाला फोर्थ पे आना है तो आपने उसकी नंबरिंग कर दी। उसके बाद आपने क्या करना है, ये कर दिया, आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि कौन सा सेंटेंस थर्ड प्लेस पे आएगा, तो यू विल हैव टू आंसर कि कौन सा थर्ड प्लेस पे आना है, ठीक है। देन विच सेंटेंस शुड कम इन द सेकंड, सेकंड में कौन सा आएगा तो आपने उसको नंबर कर दिया। विच सेंटेंस शुड कम फोर्थ इन द पैराग्राफ, तो फोर्थ पे कौन सा आएगा आपने वो कर दिया। आपने ऑप्शन को टिक करना है। इज इट क्लियर? ओके, वी हैव डन डिफरेंट टाइप्स, 3 टाइप्स। एक में क्या है, फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस फिक्स कर दिए और बीच वाली ऑप्शंस को आपने अरेंज करना है। सेकंड में क्या है, आपको रोमन नंबर्स में दिए हुए हैं और आपको उसको अरेंज करना है। थर्ड में क्या है, आपको बताना है कि थर्ड प्लेस पे कौन सा आएगा, फोर्थ प्लेस पे कौन सा आएगा, सेकंड प्लेस पे कौन सा आएगा, एंड यू नीड टू क्लिक। This is sequence of a sentence. Okay, now we are having the questions for you people to practice. Thank you so much, Jyotika. If it is clear to you, let's do it. In the following question, the first and the last part of the sentence are numbered as 1 and 6. ठीक है, ये फर्स्ट टाइप है। The rest of the sentence is split into 4 parts and named as this and this and this, ठीक है, और आपको इसको अरेंज करना है। इंडिया हैज बीन अ लैंड ऑफ, बताओ आंसर। ऐसे नहीं, इकट्ठा सीक्वेंस बताओ। अगर वो पी क्यू एस आ रहा है तो ए ऑप्शन बताओगे। इंडिया इज अ लैंड ऑफ लर्निंग थ्रू एजेस, not indeed in the sense that education had been universal, but in the sense that learning has always been very highly valued. And learned man has been held in the higher esteem. Yes, what should be the answer? I have finded out the answer. Now it's your turn कि आप लोगों को क्या समझ आता है। डी, यस, फर्स्ट का है डी ऑप्शन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? फर्स्ट की जो आंसर है दैट इज डी। ओके, नेक्स्ट।
Religion has been used मुझे ऐसे लगता है रिलीजन हैज बीन यूज्ड किसके लिए टू डल द रिलीजन हैज बीन यूज्ड बोथ एज अ वेपन ऑफ आइसोलेशन एंड एज मॉर्फिया इसका मतलब PS टू डल द अवेयरनेस अबाउट द रियल प्रॉब्लम्स तो मेरे अकॉर्डिंग बी ऑप्शन है जो करेक्ट है नेक्स्ट in spite of unprecedented boom in the market मेरे को लगता है ये इनकम्प्लीट है ये रहने देना थर्ड वन yes we are leaving the third question we are moving to the fourth question now please find out कि fourth question में क्या है for some people patriotism yes please everyone अपना देखा करो ये ना देखा करो सामने वाले ने क्या आंसर कर दिया मैं भी वही कर दूं don't do that because we are not cheaters we are going to understand from here and then going to reply बिल्कुल जी फोर्थ का आंसर है ए बिकॉज इसका मतलब क्या है इसका मतलब है फॉर सम पीपल पेट्रियोटिज्म मीन्स हेट्रेड फॉर अदर कंट्रीज बट दिस टाइप ऑफ पेट्रियोटिज्म इज इविल मतलब ये पाप है एंड इट शुड बी कंडेम्ड और इसको रोकना चाहिए बिकॉज टुडे मैन बिलोंग्स टू द होल वर्ल्ड क्योंकि आज जो इंसान है वो सारी वर्ल्ड को बिलोंग करता है ओके यू पीपल हैव गिवन द राइट आंसर आई वांट कि आप इसको ट्रांसलेट करके जरा लिख के दिखाओ इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस हाँ जी फर्स्ट वाला जो है वो फर्स्ट है सिक्स्थ वाला है वो सिक्स्थ प्लेस पे है सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ प्लेस आपने असाइन करनी नाउ आई वांट कि अगर आपने इसको ए आंसर दिया है
तो आई वॉन्ट कि आप इसका मीनिंग लिखो, सेंटेंस का क्या है। जैसे मैं चैट में लिख देती हूँ ना, उस तरह इसका मीनिंग लिखो यार। देशभक्ति पूरे वर्ल्ड के लिए होनी चाहिए, किसी एक कंट्री के लिए नहीं। हाँ जी, कहते पर आपने मिस किया है, सेंटेंस जो सेंटेंस बनाओ। कुछ लोगों के लिए पेट्रियोटिज्म का मतलब है दूसरी कंट्रीज को हेट करना, बट ये एक पाप है और हमें इसे रोकना चाहिए, बिकॉज आज जो इंसान है वो पूरी दुनिया को बिलोंग करता है। Okay, let's move to the fifth one. A connection had long been suspected. Of this connection had not been understood. A connection has long been suspected between the abundance of mosquitoes and the occurrence of malaria, since both were at their worst in the same regions and seasons, but the nature. But the nature of this connection has not been understood. A connection has been suspected between the abundance of mosquitoes and the occurrence of malaria. B option is the correct option. Is it? Is B option the correct option? According to me, it is. And what about others? इसका मतलब ये है कि कनेक्शन, बहुत देर से इन लोगों के बीच में कनेक्शन देखा गया है। बहुत सारे मॉस्किटोज होंगे और वहां पे मलेरिया भी होगा, ठीक है। एंड सिंस बोथ वर एट देयर वर्स्ट इन द सेम, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वर्स्ट होते हैं एक ही सीजन में और एक ही रीजन में, एरिया में, बट इनका नेचर जो है कभी आज तक समझ नहीं आया। जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है, मॉस्किटोज बहुत ज्यादा होते हैं, तब मलेरिया बहुत ज्यादा होता है। तो वो कहते हैं कि ये देखा गया है बट अभी तक इनका कनेक्शन कभी समझ नहीं आया। इज इट क्लियर? पहले आप फिफ्थ तो कर लो भाई सोफिया। I am on the fifth and I will discuss just the fifth one. And after that we will move to the sixth one. So fifth का मेरे अकॉर्डिंग है जी B. And I want कि अगर आपको समझ आ गया है, write its meaning in the comment box. What does that depicts? Depicts मतलब what is the meaning of that?
फिफ्थ का बी है, बी। ओके, लेट्स मूव टू द सिक्स्थ वन। फिफ्थ का बी है, एंड इफ यू पीपल हैव अंडरस्टूड प्लीज टाइप इट्स मीनिंग। आई वॉन्ट कि आपको जो सेंटेंस में करा रही हूं उसका मीनिंग भी तो समझ आए। सिक्स्थ का डी है, फिफ्थ की मीनिंग मेरे को बताया नहीं आपने, अब सिक्स्थ पे पहुंच गए। वेरी नाइस स्टूडेंट्स। आई एम नॉट लिसनिंग कि सिक्स्थ का क्या है, मैं अभी वहां पे आई नहीं। वाई शुड आई मेक इट क्लियर टू यू? शक, सस्पेक्टेड मीन्स शक है। लिखो फिफ्थ का मीनिंग, राइट डाउन द मीनिंग ऑफ द फिफ्थ। हाँ, जब मैम ने पूछ लिया तब रिकनेक्ट हो गई क्लास। मैंने कहा है कि बहुत देर से ये शक है कि जहां पे बहुत सारे मॉस्किटोज होंगे और मतलब उसी रीजन में उसी सीजन में क्या होगा कि बट द नेचर सेंस बोथ, कि ये है कि उनकी नेचर बहुत वर्स्ट होगी बट उस चीज को हम डिपिक्ट नहीं कर पाए। हाँ, ये भी सही है पारुल कि मॉस्किटोस की अधिकता मतलब अबंडेंस और मलेरिया के बीच में क्या कनेक्शन है। चलो, लेट्स मूव टू द सिक्स्थ वन नाउ। Science does not merely add new truths to the old ones, it also discovers new truths. New truths, discover new truths that destroy some old truths and thereby upset the way of men's thinking and their lives. सिक्स्थ का है डी। बिल्कुल ठीक है दीक्षा, यस, सिक्स का आंसर है डी। Okay, so have you understood? Have you? कोई बात नहीं, अगर रिकनेक्ट हो रहा है तो प्लीज एक बार अंडरस्टैंड कर लेना, नहीं तो लेक्चर को दोबारा सुन लेना, ठीक है? बिकॉज फॉर द नेक्स्ट क्लास वी हैव टू मूव अहेड ऑल्सो। सॉरी। Okay, we are having a passage
Please read this passage and now we are going to solve the answers of this passage. I'm giving you 5 minutes to read the passage. Where it is written? Frustrated. It is frustrate. मतलब जब हमें किसी चीज से खिज मची होती है. We are unhappy. That is frustrated. इस वाले में तो मैं भी आई हूँ, देखो रिप्लाई तो करो. विग्रसली होता है गुस्से से. लेजर मीन होता है वेला. विग्रस होता है बहुत जाता होता है गुस्से से, जा होता है फुल ऑफ एनर्जी, जा होता है वेरी स्ट्रॉन्ग. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन. नाउ okay, let me make you understand this paragraph first. Deliberate होता है बहुत ध्यान से. Okay, the first step is for us to realize that a city need to be a frustrator of life. जो सिटी है उसमें क्या है, लाइफ बहुत फास्ट है, तो उसके कारण एक खिज सी, एक भाग दौड़ सी मची रहती है. तो ये हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. इट कैन बी अमंग अदर थिंग्स अ मैकेनिज्म फॉर इनहैंसिंग लाइफ. एक ऐसा मतलब फोर्स जिससे क्या है, लाइफ जो है वो इम्प्रूव होती है, इनहैंस होती है. फॉर प्रोड्यूसिंग पॉसिबिलिटीज ऑफ लिविंग, जो कि हमें बताती है पॉसिबिलिटीज, है ना. मतलब कि कैसे कैसे हम क्या क्या करके जी सकते हैं. नो डाउट इन विलेजेस द लाइफ इज वेरी सिंपल, but in comparison to that, in cities the life is being mentioned over here. Please don't write the answers. I am just going with the meaning. Please understand it. Then we are coming to the questions too. Okay, but for that to happen, deliberate and drastic planning is needed. But for that to happen, कहते हैं इसके लिए अगर आपने पॉसिबिलिटीज ढूंढनी है, डेलिब्रेट एंड ड्रास्टिक प्लानिंग इज नीडेड. ड्रास्टिक का क्या मतलब होता है? बुरी से बुरी भी. अगर मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया कुछ पैसा, मैं सोच के चलूं कि ये नहीं वापस आना, मैं करूंगी, अगर वापस आ गया तो मेरा लक है ना. डेलिब्रेट मतलब करना है, बहुत ध्यान से करना है, बट फिर भी सबसे माड़ा एंड मतलब माड़ा जो होता है उसके तक सोच के चलना. Towns, as much as animals, must have their system of organs. Those for transport and circulation are an obvious example. कहते हैं टाउन्स के पास मतलब इतने सिस्टम्स होते हैं ऑर्गन के, मतलब सिस्टम होता है वहां पे, जैसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए होते हैं या सर्कुलेशन के लिए होते हैं. ठीक है, इस तरह. What we need now are organ systems for recreation. अब हमें क्या चाहिए होता है? ऑर्गन सिस्टम. किसी भी बिजनेस को करने के लिए रिक्रिएशन मतलब दोबारा से अगर कोई सिस्टम क्रिएट करना है तो हमें एक सिस्टम चाहिए होता है, टाइम चाहिए होता है, लेजर चाहिए होता है, कल्चर चाहिए होता है, कम्युनिटी एक्सप्रेशन, कि अगर हम ये काम करेंगे कम्युनिटी इस चीज को किस तरह देखने वाली है. दिस मीन्स अबंडेंस ऑफ ओपन स्पेस, easy access to unspoiled nature,
Beauty in the parks and in the fine buildings, gymnasia and swimming baths and recreation grounds in plenty, central spaces for celebration and demonstration, halls for citizen meetings, concert halls and theaters and cinemas, they belong to the city. तो वो सारी चीजें जो है वो होनी चाहिए. And the buildings must not be built anyhow or dumped down anywhere. मतलब ये सारी चीजें एक प्लानिंग से होती हैं. इसका मतलब ये नहीं आज बना दो कल डंप कर दो, ऐसा कुछ नहीं होता. तो वो सिटी में क्या होता है, हर चीज का एक सेंट्रलाइज्ड वे होता है और उसको प्रॉपरली प्लान आउट किया जाता है. एंड द बिल्डिंग मस्ट नॉट बी बिल्ट एनी हाउ और डम्प्ड एनीवेयर. बोथ दे एंड देयर ग्रुपिंग्स शुड मीन समथिंग. बोथ दे एंड देयर ग्रुपिंग मतलब जो उन्होंने किया है इन सबका क्या है, मतलब इनका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है. शुड मीन समथिंग इम्पोर्टेंट टू द पीपल ऑफ द प्लेस. Okay, cities can be made to provide full facilities for life only if अब बताओ फर्स्ट का आंसर. फर्स्ट का डी सही है जी. अ सुटेबल टाइटल फॉर दिस पैसेज. vigorously means full of energy. The need of a planned cities. Yes. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन करते हैं. Yes. Third ka B. You all people are correct. That's very nice. Which one of the following has an opposite meaning to the word frustrator in the passage? Fourth one. Nice, very nice students. You are too intelligent. Applauder नहीं आएगा, एग्जीक्यूटर आएगा. इसका मतलब होता है applauder means those who provide, you can say, approval.
फिफ्थ हम करते हैं, फोर्थ करा अभी। The building must not be built anyhow or dumped down anywhere. The statement implies that building should be built with suitable material, should be constructed according to some suitable design, not indiscriminately, should be scattered to provide for more of the open space, should be built to enable citizens to enjoy nature. और B should be constructed according to some suitable design. मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर बी आना चाहिए। Yes, approver and applauder means the same. फिफ्थ का आंसर है बी। द वर्ड ड्रास्टिक इन द पैसेज मीन्स पावरफुल। The author talks about unspoiled nature. In what way the nature remain unspoiled? सिक्स्थ का बी है, बी। The author talks about the unspoiled nature. In what way can nature remain unspoiled? By building cities with the system of organs like those of animals. Yes, सेवेंथ का बी। और एट्थ का एट्थ का सिक्स्थ का बी, सेवेंथ का बी, एट्थ का ए, डी। शिवम फोर्थ का डी, फोर्थ का डी, फिफ्थ का बी। Okay, is it clear what we did yesterday? We did sequence of the sentences and the paragraph. Is it clear to all of you? So what type of questions कल आपका जो इंग्लिश का टेस्ट हुआ, अकेला इंग्लिश का ही टेस्ट था जो सारे सब्जेक्ट्स का टेस्ट था? कब हुआ था इंग्लिश का टेस्ट? एट व्हाट टाइम? कल रात को 9 बजे। किसने लिया था? ओके, जिनका दिसंबर में एग्जाम है उनके लिए था। फाइन। एंड कितने क्वेश्चन थे और कितने टाइम के लिए था टेस्ट? 100 क्वेश्चंस थे और कितने टाइम के लिए था? 2 आवर्स के लिए।
सो आपको रिजल्ट मिल गया चेक होके? बट टेस्ट है कैसा था? डिफिकल्ट था या इजी था? Please ask Ravi sir about that. He is having, you can say, clear dates and everything. कोई बात नहीं, लेट यू गेट द टेस्ट एंड आफ्टर दैट अदरवाइज सर विल एक्सप्लेन यू, नहीं तो मैं कर दूंगी एक्सप्लेन. विल आस्क सर, कोऑर्डिनेट कर लेंगे एंड विल एक्सप्लेन दैट टेस्ट. Rest, what you are being taught in the classes, are you people understanding? Any doubt you are facing in the English class? Sure? That's very nice, students. And when you are going to have your next class? Okay, you are having 1 hour. Please, what you can do is you can relax for a bit and you can have your dinner, and after that be ready for the next class. Thank you so much for your cooperation, and please do some of these things also in the class, and at your personal end also try to solve the comprehensions. Take care of yourself. God bless you. Good night, Ji.